Hello everyone and welcome back to my channel. This is Tessie Nazar. So we are going to discuss another topic of conflict resolution and negotiation skills. So today we are going to discuss what is negotiation strategies, what are the different pitfalls, what do we need to avoid. We'll also touch what is negotiation and how we can improve our negotiation process. So let's start. Impacts our life, how it can, like, maybe it's a good thing, it's agar aap usko sahi tarah, if you're able to crack the deal, if you're able to convince the other person, so definitely that will be in your own favor. So moving ahead one step, like what are the negotiation strategies that should be done, what are the ideal negotiation strategies. कुछ चीज़ें मैं खुद पढ़ाएंगे, कुछ चीज़ें we'll discuss in the class कि होनी चाहिए, like throughout the semester whatever we are discussing, whatever we are going through, that should be part of that. So we will be discussing few of the strategies, yet a few of the things that are like जो होना चाहिए negotiation में. So first of all, anyone, what will be the best strategy और the rules of negotiation? Anyone, सबसे पहला क्या रूल होना चाहिए किसी से अगर आप जब negotiate करने जाती हूँ, सबसे पहला क्या रूल होता है, या कहीं भी अगर मैं कहीं, जैसे for example if you're going for a presentation, what's the first rule of that? Anyone, any idea, कुछ भी जो आपके मतलब. मैम रूड नहीं होना चाहिए. Okay, all right. Yes, Arsalan. Lie. Sorry. That's the basic rule. We shouldn't lie. We should not lie. All right. सबसे पहला basic rule. Yes, Imad. मैम जो भी नेगोशिएट जिससे करने जा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो रही है कि हम किससे नेगोशिएट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड होमवर्क करना है मैम जी. Very good, very good. So first of all, you have to do your homework and you need to be prepared for that. Like जिस तरह अभी तक हमने सारे चैप्टर्स में यही बात की कि जब तक you have to know कि आप किससे negotiate करना है, who is the other party, क्या है उसकी strength, उसकी weaknesses, उसकी like again उसके क्या क्या details हैं, किस चीज़ पे है. So again you need to be prepared for that. Then you need to think that negotiation again is not a game, it's something that like aap kisi ko, you need to develop strategy, need to develop different processes to do that. So again negotiation is such a thing. Do not consider it like कि अगर मैं जीतूंगा या वो हारेगा. It's not a win lose situation, it's something that's related to, हम जिस तरह हमने बात की बटना हो गया या मे बी विन विन सिचुएशन हो गई. So that's what we are cracking in this particular course कि हमें उसके लिए we are working towards one goal. Then Imad was very right. We need to know the person we are going to talk to. हम किससे negotiate करने जा रहे हैं, उसकी personality क्या है, sorry, वो किस उसका क्या level of like competence क्या है, उसको कितना like चीज़ों में वो या तो बहुत rudely बात करता है या बहुत competitive है या बहुत ज़्यादा collaborative काम करता है या बहुत ज़्यादा individualistic है. So again we need to see what type of approach that person, that party is having. वो पहली हमेशा बाकी चीज़ों में या उसके जो जर्नल उसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी, so you need to do your homework first before going anywhere. Then you need to see that जिस तरह हमने अपने लास्ट चैप्टर में बात की थी, पावर, like how much power you are having, either reward power, coercive power, either expert power, either your in terms of like आपकी पावर में मे बी आपको वो लोग रेफरेंस पावर, मे बी एक्सपर्टीज पावर. सो अगेन देयर आर डिफरेंट पावर. जो हमने पोजीशन पावर की बात की थी, देन वी डिस्कस्ड अबाउट क्या कहते हैं लेजिटिमेसी पावर. सो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्यों लोग रेफर करें, या कुछ सिचुएशन की वजह से करें, या आपको मे बी आपकी पर्सनालिटी की वजह से करें, या मे बी आपकी पोजीशन की वजह से करें. सो अगेन यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड while negotiating. Then goes like the list. First of all, again जब आप किसी के पास जाते हो, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था assertiveness, assertive, how much assertive you are, आप कितना अच्छा उस बंदे को understand कर रहे हो, you're effective. जिस तरह हम कहते हैं ना, जो हमने अगर मैं बात करूँ आपके जो 5 senses हैं, how much you are focusing on that, listening, speaking, filtering out and watching. जो हमने ये भी concept पढ़ा था in our previous chapter
that how either we are practicing this particular rule of thumb or not. Either we are listening and then we are speaking, and then we are filtering and watching that what needs to be done. So we need to keep this in mind. Also, we need to never lose control of yourself. Like again, if we lose control of ourselves, that means कि हमारे अंदर वो है ही नहीं चीज. हम मे बी जिसे कहते हैं ना, हम जैसे कहते हैं अपनी जंग लड़ने से पहले हम हार गए, क्योंकि हमने या तो वी स्टार्ट शाउटिंग या वी स्टार्ट मे बी फाइटिंग, वी स्टार्ट मे बी हमने एक डिसएग्रीमेंट हो गया, या मे बी व्हाटसोएवर, डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर हाइप और दैट थिंग्स, कितना उसको सही तरह लेके चल सकते हो. अगर नहीं सही लेके चलोगे तो डेफिनेटली you will be losing your control, and other party will also lose the control, और तो वो फिर negotiate नहीं हो पाएगा. Then rule 7 is always look for common grounds and common goals. Whatever you are doing, जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, हमेशा ये देखो कि what are the common grounds of that. क्यों ये काम करें. अभी मैं सारी चीज़ें वो बात करी जो हमने previous chapter से पढ़ा, so it's like a recap. These should be the rules of negotiation. Then one rule can be, जिस तरह हमने chapter when we discussed about persuasion, कि when you think यार अगला बंदा आपकी बात नहीं समझ रहा, so it's the time to walk away. Sometimes it's better to walk away. आप don't like mess around or don't stick to one point. अगर आपको लगता है कि यार that party is not understanding, so it should be कि when you can't do like आपने एक हद तक आपने समझाने की कोशिश की, you try to convince other party, you try to make the things feasible for everyone, but if something is not going as planned, it's better to quit, it's better to walk away. कभी कभार छोड़ना बेहतर होता है, ना कि आप उस चीज़ों को और ज़्यादा worse कर दो सिचुएशन को. Then we talked about negotiation में अगर एक rule of thumb ये भी हो सकता है, how you maintain your trust and integrity. झूठ नहीं बोलना, अगेन जिस तरह अरसलान ने कहा, डोंट लाई, you not have to lie for the thing. This is one of the things, that's the rule of negotiation. झूठ बोलोगे ना किसी स्टेज पे, किसी ना किसी टाइम पे, that would be coming in front of you. So be honest, कितना भी कुछ है, don't exaggerate, don't like आप उस चीज़ को नहीं खराब करो ताकि आपकी डील ना खराब हो जाए. लोगों को पता चलेगा बाद में तो आपकी इंटेग्रिटी, आपके लोगों पे आपका ट्रस्ट हट जाएगा. Then we also discussed about अगर आपको लगता है कि वो सामने वाला बंदा आपके साथ मे बी पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, या कोई कंसेंसस नहीं बन रहा, या वी आर नॉट कमिंग ऑन द सेम पेज, सो अगेन ट्राई टू फाइंड आउट, कहते हैं मिडल वे आउट, कि कोई मिडल वे आउट, जिस तरह हमने पढ़ा था कि मिडल वे आउट अगेन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि अगर निकल सकते हैं तो गो फॉर दैट. जस्ट तो आप वही वाली बात है कि एग्रीमेंट निगोशिएट हो जाए आपका, आप दोनों कन्विंस्ड हो, दोनों को फायदा हो. आज जितनी की बातें निगोशिएशन में अगर हम कर लें तो वही वाली क्या कहते हैं, बॉटम लाइन इज कि जब तक चीज़ें विन विन सिचुएशन की तरफ नहीं जाती, वी ऑल विल बी एट अ लॉस. वन very important rule of negotiation is like put everything in writing. Whatever you are discussing, whatever I'm saying to other party, whatever I'm like maybe emphasizing, हमेशा हर चीज़ को रिटर्न में रखो. आजकल की दुनिया में इवन इट्स योर बॉस, इवन इट्स योर कोलीग्स, इवन समथिंग एल्स, जब तक आपके पास रिटर्न में कोई चीज़ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, आप किसी को नहीं कह सकते क्या तुमने तो मुझे ये कहा था, मैंने इसलिए काम कर दिया. फ्रेंड्स की लेवल तक जब तक आप अभी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं गए तो आप ज़बानी कलामी बात कर लेते हो. व्हेन यू विल बी इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, it's better to keep everything in record, in written, in writing. क्योंकि बहुत दफ़ा we have seen, even like in being in the industry for like academia industry for the last 10 years, in before that as well, I have seen people, आपके अपने दोस्त, आपके अपने maybe बहुत अच्छे जो colleagues हैं, peers हैं, when the time comes, जब उन पे कोई बुराई आती है, कुछ होता है या कुछ और भी in case, तो लोग मुकर जाते हैं, लोग कहते थे हमने तो नहीं कहा, तुमने तो मेरे लिए क्यों कर दिया ये वो. So keep everything in return. कोई आपने अप्रूवल है, कोई बात है, कोई आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, you do have like आपके पास कोई ना कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने क्यों ये काम किया. अगेन पहले ईमेल्स होती थी, ऑफिशियल ईमेल्स. आजकल अगर ऑफिशियल ईमेल्स के बाद आजकल ऑर्गेनाइजेशन में इट्स वेरी कॉमन, दे हैव व्हाट्सएप ग्रुप्स या दे हैव देयर फॉर्मल ग्रुप्स. अगर इनफॉर्मल ग्रुप में भी कोई चीज़ रिटर्न में होती है तो दैट्स फाइन, क्या ठीक है, बट वर्बली कहते हैं ना, ज़बानी कलामी इज नथिंग टिल द टाइम यू हैव समथिंग इन रिटर्न. बिकॉज बहुत दफ़ा मैंने कोई चीज़ की अप्रूवल ली, बाद में बंदा का अच्छा किसी और के सामने मुकर जाए. So these are few of the things that needs to be kept in mind while negotiating.
Anyone would like to add something in this? उसके अलावा क्या हो सकते हैं rules of negotiation? ये तो चलो कुछ ना कुछ that we have covered in our previous chapters. और क्या rules of negotiation होने चाहिए? Just Arsalan? Ma'am, we have to see the bargaining round. If there is no like limit for bargaining, then we should, move out. It's of no Good. use. Good. Good. We can make them, more uncomfortable. There might be a chance that they can go home and think about that and get back to us. But if we are, continuously pinching them to, get whatever we are saying, then tables can be turned around. It can go wrong as well. Definitely. Very good point. Tables can turn around. So again, that's one of the most important point. हो सकता है जिस तरह अभी आप जो कर रहे हो अगला भी आपके साथ ऐसा करे या आपके साथ भी हो जाए. So again, you need to think twice before doing anything bad to anyone. कि अगर आज मैं इसके साथ कर रहा हूँ कोई बाद में मेरे साथ भी तो कोई कर सकता है ना. Yes, very good. What about the rest of the class? What are the rules of negotiation other than what I have discussed? और क्या हो सकते हैं? Imad has contributed. Yes, And Batna. Okay, Batna, yes, very good, Talha. Batna is one of the. Okay, you are going for best alternative. Fine. What Yes, else? Okay, let's hear from those people who have not participated yet. Shaz. Yes, ma'am. I've just joined the meeting just like 10 seconds ago. I don't know what's going on. And I just like मुझे एकदम 10 seconds I clicked that Shaz has joined. All right. Let's hear from Kiran. मैम आई थिंक हमें दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट के बारे में एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि दोनों के इंटरेस्ट क्या है और जिस चीज पे नेगोशिएशन हो रही है कि हमें क्या चीज चाहिए उस चीज का भी क्लियर आइडिया हमें होना चाहिए बिफोर नेगोशिएशन. Very good. Very good. All right. Tale. मैम यही कि हमें मतलब पता होना चाहिए हम किस चीज़ पे कर रहे हैं और नेगोशिएशन का भी यही है कि मतलब अगर दोनों पार्टी मतलब मान रही हैं या मतलब हमारे उसके अंडर है बात तो ठीक है वरना मतलब छोड़ देना चाहिए. फाइन ठीक है. यस हानिया. What are the rules of negotiation, Hania? Are you there? Okay. So these are few of the rules of negotiation. अब हम आते हैं. These are 7 common pitfalls to avoid in terms of when we are negotiating. इसके अलावा भी there are a lot of other strategies आप जिसको avoid कर सकते हो. Just कि आप उस चीज़ को अंदर you don't want to indulge yourself in something के बाद में आपको मसला उस the other party is also having some troubles. So it's better to avoid this particular things ताकि आप किसी एक कैसे जितना बटना हो गया या you want to come on one particular stance ताकि आप दोनों negotiate कर सकें. So let's proceed towards this pitfalls. Number 1 is your poor planning. When you have not done, जिस हमने पहले कहा था, you need to be prepared for that. Prepare how much prepared you are. If you have done a poor planning, if you're not prepared, definitely you will be having आपको कहीं ना कहीं उसका नुकसान उठाना पड़ेगा because जो सामने वाला होगा maybe if he is prepared तो वो आपका जो कहते हैं ना जो arguments में he or she would be easily winning because they have done their homework. So before going anywhere for negotiation, अगर हम कहते हैं हमने किसी से even हमने जब फल वाले से या किसी दुकानदार से भी negotiate करना होता है पहले हम हमारे जहन में कोई रेफरेंस प्राइस होती है क्या यार वो तो इतने की दे रहे हैं या वो ये ऐसे कर रहे हैं. सो अगेन दिस इज समथिंग कि हमने अपना होमवर्क किया है. हमने पहले और लोगों से पूछा हुआ है कि क्या मार्केट में चल रहा है. किसी से पहले आने से पूछा है उधर किसी से जो अगर 4-5 वेंडर्स खड़े हुए तो हमने एक दो से पूछा फिर वी डू हैव द आइडिया. सो अगेन प्लानिंग हाउ मच प्लान्ड यू आर फॉर दैट पर्टिकुलर डील यू आर गोइंग फॉर. देन you need to know your bottom line कि यार this is something, this is my threshold. अगर इसके अलावा मुझसे कोई और negotiate करने की कोशिश करेगा तो मैं negotiate नहीं करूँगा. So we need to be very clear in terms of our bottom line कि यार ये मेरी priorities हैं. This is something मैं इसको शायद इसको change नहीं कर सकता, इसको change कर सकता हूँ.
if the other party is willing to, तो मैं इस काम पे काम कर लूँगा. तो so we all should be known to our bottom line. Then we need to be prepared. जिस तरह हमें वही वाली बात है, preparedness. अगर वो क्लास की presentations हैं, या अगर आपने इंटरव्यू पे जाना है, या आपने कहीं किसी जगह जाके स्पीच देनी है, या it could be anything. You need to be prepared for whatever you are going to say or what you are going to talk about. आपको पहले से आपको जो कहते हैं ना पिन पॉइंट्स आपके पास सामने होने चाहिए. So this is like the list what I'm going to talk about, or these are the bullet points whatsoever, but that should be in front of you. In terms of planning or your homework, that also comes under that you should be knowing other person's preferences. कि सामने वाली पार्टी क्या चाहती है हमसे. जब आप बात कर रहे हो, निगोशिएट कर रहे हो, आपको पता है बॉटम लाइन ये क्या है, फिर आपको सामने वाले का भी कहीं ना कहीं आइडिया रखना चाहिए कि यार इसको अगर आपने ये डील क्रैक करनी है, इफ यू वांट टू बी लाइक हैव अ विन विन सिचुएशन, हाउ आई एम गोइंग टू गो विद दैट. मुझे सामने वाले का पता है उसको उसका क्या मे बी वो ज़्यादा किस चीज़ से फोकस कर रहा है, क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, क्वांटिटी पे फोकस कर रहा है, प्राइस पे फोकस कर रहा है, मे बी ड्यूरेशन पे फोकस कर रहा है, मे बी अगर कोई और चीज़ है, फिर समथिंग यू आर बाइंग और यू आर सेलिंग योर कार. इफ आई एम अ सेलर तो डेफिनेटली मेरा होगा कि मैं अच्छा प्राइस दे लूँ. बायर का होगा मैं इसको जितना ज़्यादा से निगोशिएट कर लूँ, बट मेरी एक बॉटम लाइन है कि मैं इससे ज़्यादा कम नहीं करूँगा. सो अगेन यू नीड टू बी, आपको फिर सामने वाले की नज़र आना शुरू होता है कि यार इसको क्या समझ आ रहा है, मेरी गाड़ी में इसको क्या अच्छा लग रहा है. अच्छा, आप उस पर उसको पिच करना शुरू करते हैं कि यार इसमें ये फीचर्स जैसे ये सामने उसको भी समझ आ रहा है. अच्छा कि ज़्यादा पैसे पे फोकस कर रहे हो कि अगर वो आपको फॉर एग्जांपल 20,000, 25,000, 50,000 कम दे रहा है, आप निगोशिएट नहीं हो पा रहे, तो क्यों नहीं हो पा रहे, ऐसा क्या चीज़ है. सो अगेन while negotiating you should be knowing each and other terms कि why you are not coming to that particular point, what is the main thing, what are your preferences, what is your bottom line, and what are your alternatives. So both the parties can be known to that. Then second point is thinking the pie is fixed. Now this is something that we usually do in our negotiations. We feel और we मतलब हमें यही लगता है कि यार जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो चीज़ मुझे है, अगले वाले को भी वही चीज़ चाहिए. बट इट हैपन्स कि ज़रूरी नहीं है कि द अदर पर्सन ऑल्सो लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बात की, मेरे लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सामने वाले के लिए मे बी क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है. सो अगेन वी नीड टू focus on why that person is not maybe having the deal, or why that person is not able to negotiate with me. Maybe it's due to whatever I am offering that person. Maybe it's also due to he is not focused on that particular, his preference is something different. But I was, maybe that's my idea, or that's my proposition कि यार मैं सोच रहा था कि इसको तो ये चीज़ चाहिए, but इसको तो ये चीज़ नहीं चाहिए. So again, you need to be very discussing that thinking the pie is not fixed. Like everyone would be having a different flavor. Everybody would like to have a different maybe stance. उनको वो चीज़ नहीं चाहिए जो आपको चाहिए. So again, you need to come to that bottom line. You need to understand other people preferences as well. Exactly उनको क्या चीज़ चाहिए इसमें से, उनका क्या मफाद है, वो किस फायदे को देख के करना चाह रहे हैं आपके साथ negotiate. So you need to understand, and then you can further work on that particular negotiation. The other way, Yes, Anya? ma'am, I'm saying that in another way we can say that कि if अगर मतलब both party को अपनी मीटिंग सक्सेसफुल बनानी है, तो उसे ये देखना होगा कि अदर पार्टी की किस एजेंडा में इंटरेस्ट है. बिल्कुल, उसको क्या चीज़ चाहिए, उसको क्या इंटरेस्ट है, why that particular party is negotiating with you. Maybe मैं ये सोच रहा था कि उसको मेरा वो चीज़ नज़र आ रही है, but he is not focusing on that, or that particular party is not focusing on that particular thing. He is interested in something else. So we need to identify कि उसको उस particular negotiation में क्या चीज़ फ़ायदेमंद लग रही है, कि क्या फ़ायदा वो लेना चाह रहा है. Then we can have the negotiation. Otherwise इस तरह वही वाली बात है कि मैं अगर being a seller मैं किसी को कुछ चीज़ सेल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसका उस चीज़ के बारे में क्या राय है, या वो क्या देखता है, उसको क्या उसकी प्रेफरेंसेस हैं. सो डेफिनेटली आई एम नॉट एबल टू क्रैक द डील. जिस तरह इंश्योरेंस वाले अगर आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल जो एजेंट्स होते हैं वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, वो पहले आपकी प्रोफाइल को रीड करते हैं कि अच्छा आपको क्या चाहिए, अच्छा आपका क्या है, आपके क्या लिव एक्सपेंस क्या है, फैमिली एक्सपेंस क्या है, कितने लोग हैं आपके घर में, आप अच्छा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पर जाते हैं साल में. वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ के वो आपको एक्चुअली असेस कर रहे होते हैं कि वेयर यू आर स्टैंडिंग.
आप किस तरह के हो, आपका कितना मे बी जो कहते हैं ना आपका एक लाइफस्टाइल कैसा है, आपका एक फैमिली इनकम कितनी है, एंड देन दे कैन पिच यू अकॉर्डिंगली कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है। ये सर सलान। Ma'am, there was some distortion, but it's fine now. अच्छा ओके। So moving forward to our third pitfall, failing to pay attention to your opponent. Again, this is one of the major mistake any negotiator can make कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि सामने वाला बंदा जो या जो opponent है हमारा what exactly they are saying है। जिस तरह हमने पहले बात की थी, listening हमारी अगर सही नहीं है या मे बी हमारी we are not actually focusing on कि उसको क्या चीज़ चाहिए, or we are not able to understand, or we are not able to remove our biasness। बहुत दफ़ा होता है मैं सामने वाले से negotiate नहीं करना चाह रहा कि I'm like not interested, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब ये वाला नहीं। So again you need to see that what exactly that person is offering you। So इस तरह बहुत दफ़ा जब हमें किसी चीज़ को वी ट्राई टू जो कहते हैं ना हम उसके एटीट्यूड को शेप करने के या उसको देखने के लिए कि एग्जैक्टली what influence the opponent or what exactly how can we influence that other party। हम इसको as this term is called as framing, how we can frame it। जरा बहुत दफ़ा हमने मार्केटिंग में भी हम यूज़ करते हैं फ्रेमिंग की टेक्नोलॉजी कि we need to frame our customers कि उनको क्या चाहिए, कि जिस तरह कस्टमाइज करके दो या कस्टमाइजेशन करो। So again we need to understand that what exactly our other party is asking for us। जैसे हमने पहले वाली बात की, it's the same thing but it's a different way कि we need to figure it out कि वो क्या चीज़ चाह रहे हैं, क्या चीज़ उनको ज़्यादा अफेक्ट करी है या क्या चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस्ड है। So we need to pay attention on that particular maybe thing or that particular situation ताकि we would be able to negotiate। Then assuming that cross-cultural negotiations are just like local negotiations. Again, this is one of the thing, if you are having, agar meri company, it's a multinational company, it's having different, it's in different locations. So while negotiating, while maybe convincing employees, like अब मैं being an HR manager, मेरी पाकिस्तान की maybe premises या जो आपके demographic difference है as compared to any other country. So if I have to explain to my जो हम बाहर के मेरे जो मे बी जिसको हम कह सकते हैं जो हमारे हेड्स हैं या मे बी जो हमारा सेंट्रल डिवीजन है, जो मेरी हेड ऑफिस है, आई नीड टू एक्सप्लेन टू देम कि हमें ये चीज़ चाहिए। सो अगेन क्रॉस कल्चरल अगेन निगोशिएशन वुड बी टोटली डिफरेंट, बिकॉज हमारे यहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा बुरी समझी जाए, हो सकता है वहाँ पे नहीं समझी जाती, हो सकता है हमारे यहाँ पे किसी को इतना हम डायरेक्टली कोई चीज़ पर्सनल क्वेश्चन या पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन पूछने में लोग माइंड नहीं करें। सो अगेन यू नीड टू बी, you need to see that where exactly you are located, how you are functioning, either it's a multinational, it's a global organization, how you are going to work with them. If they will, definitely when there are people, they will be having difference of opinion, but how you respect and how you welcome others people's opinion and then you negotiate on that, that one thing you need to tailor it out। because हर जगह की हर वो कहते हैं ना हर इलाके की हर तरीके, even in Pakistan, if we are in KPK or in Sindh or in Punjab, the languages are different, the people are a little bit different, even sometimes our culture also different। like अगर मैं कहूँ अच्छा मैं पठान हूँ तो मे बी हमें, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड्स निकाल लेते हैं अपने कोई ना कहीं एक जगह पे वी कैन बी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट organizations that are multinational, again we need to see that how we are going to serve them, how we are going to negotiate, and then coming to negotiation in terms of like according to their culture, that's the one aspect that should be avoided if you want to crack the deal। Then paying too much attention to anchors। Now what is anchoring? Anchoring is something that's like when you are bargaining तो अपने कुछ पैरामीटर सेट करते हो कि दिस इज समथिंग, दिस इज माय थ्रेशोल्ड, इससे ज़्यादा या इससे कम में नहीं। फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन अ एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु इज सेलिंग हिज हाउस। अगर उसने अपने हाउस की कीमत लगाई हुई 13 करोड़, इसके पास एक ऑफर आती है 10 करोड़ की, ही वाज लाइक इट्स टू लो ऑफर, आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर। वो सामने वाला कहते हैं अच्छा ठीक है, देन ही अगेन गिव दैट पर्सन अ वेरी डिसेंट ऑफर। उसने कहा चलो लेट्स डू इट लाइक 11। उसने
क्या उसने कहा मे बी ही इज लाइक कि नहीं मेरी तो क्योंकि 13 की थी तो आई वोंट बी अग्रीइंग टू द 11. The seller said if you encountered क्योंकि 13 से मैं 12.9 तक आ सकता हूँ, then buyer comes up with to 12.3, but the seller didn't accept the offer. Now what exactly we are doing, we are basically this in terms of negotiation, this terms is called as anchoring. कि मेरा कहाँ तक जो कहते हैं ना मेरा कितना पैरामीटर्स हैं, मैं कहाँ तक अपने एंकर को बढ़ा सकता हूँ. दिस इज माय समथिंग कि यार मेरा यही बाउंड्रीज हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मेरा बजट, जिस तरह हम कहते हैं ना मेरा बजट है सिर्फ, अगर मेरा बजट सिर्फ इतना है मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता या मैं इससे कम नहीं दे सकता, बस मुझे इसी में देना है. सो अगेन वी नीड टू हैव आवर समथिंग, अपना हम एक पैरामीटर सेट कर लेते हैं. क्या करें मुझे इसमें ही ऑफर चीज़ होगी सो आई एम गोइंग टू निगोशिएट. अगर ये नहीं होगी दैट मीन दैट डील इज नॉट फॉर मी. मैं इससे कम या इससे नई वाली चीज़ों में आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विद दैट. यस अरसलान. बट मैम आई थिंक अगर नेगोशिएशन थोड़ी अच्छे तरीके से की जाती तो 12.3 वाज अ गुड ऑफर फॉर समथिंग यू डिमांडेड 13. वही वाली बात है कि अब इट डिपेंड्स कि ना, अगर फॉर एग्जांपल अब जिस तरह मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अब when being an HR manager, when we are negotiating with a person on the salary, कि अगर मैं कहूँ मेरा ब्रैकेट है सैलरी का 25 और अगला कह रहा नहीं मेरा 30 है, मैं कहता हूँ लेट्स गो विद 28, बट वो अगर 28 पे भी राजी नहीं हो, कह रहा नहीं 30 ही चाहिए मुझे, तो अगेन तो देयर आर थिंग्स कि अगले बंदे को लगता है कि 30 होगा तो मेरी ज़रूरत पूरी होंगी या मेरी जॉब ये वाली है, मुझे एटलीस्ट हो सकता है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको मिल रहा हो, तो इसलिए मुझे एक ऐसे करना है. सो अगेन होता है ना कि तेरा सम सेट बाउंड्रीज फॉर मी, तेरा सम थ्रेशोल्ड्स. अगर मैं इससे एग्री करता हूँ तो मैं बोला कर लूंगा, या अगर मुझे नहीं समझ आ रही तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. यू आर वेरी राइट कि अगर आपको निगोशिएट करना है तो आपने कुछ ना कुछ अपने आप को करना है, बट समटाइम देयर आर सिचुएशन जहाँ पे हमें अपने जो कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा ब्रैकेट है, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रीच फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट के यार मेरा, वरना हो सकता है जो भी मेरा काम है, फॉर एग्जाम्पल इट्स माई कार, मुझे पता है मेरी गाड़ी की वर्थ इतनी है तो मैं इस हद तक मैं इसको निगोशिएट कर सकता हूँ, बट मैं इससे कम नहीं जाऊँगा, फिर मुझे नुकसान है. जैसे आप शॉप्स पे भी जाते हो, आप शॉपकीपर से निगोशिएट करते हो, आप क्या देते हैं इतने का तो मुझे खुद आया हुआ है, मैं आपको इतने का दे सकता हूँ, अदरवाइज मेरा नुकसान हो रहा है या मुझे ये समझ नहीं आ रहा. तो दिस इज द सेम थिंग, दैट्स बेसिकली दैट कॉन्सेप्ट दैट जो हम वैसे आम अपनी ज़िंदगी में इसको रोजाना करते हैं, बट in terms of terminology that's called as anchoring. Then there is another concept that's called as caving in too quickly. Sometimes बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा होगा कि हम बहुत जल्दी अगर किसी से ना किसी की प्राइस को मान लेते हैं या कहते हैं अच्छा ठीक है यार जो भी हमने जिसने ऑफर की ना विल एक्सेप्टेड, बाद में हमें होता है कि यार अच्छा ठीक है हो सकता है चलो. बहुत दफ़ा अगर मैंने कहा, अभी मैंने एक एग्जांपल दी गाड़ी की, मुझे किसी ने पहली ऑफर दी कि यार ये है, मैंने उसको कहा चलो ठीक है, बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने तो बहुत कम की बेच दी है, मैंने तो बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया. सो अगेन यू नीड टू सी दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू. यू आर नॉट कमिंग टू दैट पॉइंट कि आपको ऐसा बाद में कहते हैं रिग्रेट होना शुरू हो जाए कि उसने मुझे कहा था मैंने दे दिया, बाद में मुझे नुकसान हो गया, मैं तो बड़ा सस्ते में दे दी. सो होता है ना अपनी लाइफ में भी, व्हेन वी आर सेलिंग, अगर मैं कहूँ मैं अपने हाउस होल्ड की कोई आइटम बेच रही हूँ, इट्स अ प्री लव्ड आइटम बट अगेन आई एम सेलिंग इट. मैंने कोई चीज़ बेची, मैं कहूँ यार मैंने तो इतने की ली थी, मैं इतने की दे रही हूँ, अब तो इतने कम हो गए पैसे. सो अगेन ट्राई टू बार्गेन इन सच अ वे ताकि आपको बाद में वो रिग्रेट वाली फीलिंग ना, या तो आप बहुत जल्दी डिसीजन ना ले लो. समटाइम बिकॉज बहुत दफ़ा बहुत जल्दी डिसीजन लेने से भी इट ऑल्सो पॉप्स आउट कि आपने शायद बहुत जल्दी इट्स लाइक हैपहैज़र्ड हो गया या यू वोंट बी एबल टू गो अलॉन्ग विद दैट. सो इफ़ यू आर टेकिंग सच डिसीजंस यू नीड टू अगेन कि ठीक है फाइन, इफ first offer is good for you, go for it, otherwise wait. Yes Arsalan. Ma'am, it normally happens when we are out for shopping. Like most of my friends, I have known them since beginning. They enter the first shop, they get whatever they want, and when it's my turn, I tell them to come on, just browse around the market, and then they are यार इतना महंगा ले लिया, हमें तो यहाँ आना चाहिए था पहले. So caving in too quickly, it's something normal which everyone does. Exactly. हम लोग साथ हुआ था, हम पहली शॉप पे गए, हमने कहा अच्छा ये इतने का, अच्छा दे दो, पैक कर दो. बट व्हेन वी हमने थोड़ा सा और उसको सर्च किया मार्केट को, वी लुक अराउंड एंड देन वी रियलाइज कि अच्छा ये तो इतने का यहाँ पे मिल रहा था, बट हमने तो उससे ले लिया, वी डिडंट इवन बार्गेन, वो भी पूछा भी नहीं हमें. सो अगेन
तो इसीलिए कहते हैं ना कभी कभार इसका फायदा हो जाता है व्हेन यू लाइक हॉप अराउंड एंड यू सर्च अदर लुक अराउंड। इसी तरह निगोशिएशन में भी वी नीड टू सी, जिस तरह हमने पहले ही बात की थी ऑल्टरनेटिव्स की, कि हमें एकदम भी इफ वी जंप ऑन फर्स्ट वन, हो सकता है हमारी हम काम तो कर लें बट बाद में वी विल बी डिसअपॉइंटेड, यार ये तो बहुत जल्दी मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे तो इससे और अच्छी ऑफर भी मिल सकती थी और अच्छा मेरे पास चांस था कि मैं इस पे मे बी प्राइस पर खरीद लेता। सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी avoided when you are again, if you go and look around, that will be done. In terms of like when you are negotiating with other companies, you need to see कि अच्छा मुझे ये वाली कंपनी ये ऑफर करी है, what about the rest? जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, while I was like going for this particular, मैं अभी हम अलमनाई कार्ड्स को हम कैश ऑन डिलीवरी पे बेचते हैं, सो आई आस्क्ड ऑल दीज कंपनीज, करियर कंपनीज का मुझे अपना अपना कैश ऑन डिलीवरी का रेट्स हैं, तो वी डिड विद TCS, वी हैव विद लेपर्ड, वी हैव DHL, सो दे वर डिफरेंट रेट्स गिवन बाय द कंपनीज कि अगर आपने थ्रूआउट पाकिस्तान अपने अलमनाई कार्ड हमने क्योंकि हम कैश ऑन डिलीवरी पे देते हैं, सो हाउ यू आर गोइंग टू गो विद दैट, सो थ्रू दोज कोटेशन एंड थ्रू दोज लाइक हैविंग हमारे पास 2-3 वेंडर्स का होने के बाद we can have the idea कि who is giving me best option and then we can go with that. So usually organizations में इसीलिए कोई टेंडर सिस्टम जिसको हम कहते हैं या प्रोक्योरमेंट में भी, so why we go towards those things ताकि हमारे पास options हो। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में being an HR, अगर मैं HR की बात करूँ, हम भी अपने पास ऑप्शन रखते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक रिक्रूटमेंट पूल में कि अच्छा ये नहीं, सेकंड सर हमने अपना एक पढ़ा था, अगर आप लोगों आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, रिक्रूटमेंट पैरामिड, जिसमें हम देखते हैं कि यील्ड इफेक्ट क्या है, अगर हमने कितनों को ऑफर की, कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो अगेन दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड, अदरवाइज वही वाली बात है, एट द एंड ऑफ द डे यू वुड बी डिसअपॉइंटेड एंड यू वुड रिग्रेट दैट कि मैं आई वाज नॉट एबल टू गो अलोंग विद दैट। यस, जॉब सिक्योरिटी। All right, moving towards another point, another pitfall, don't gloat. Glotting is something like fine if you have cracked the deal, आपको लगता है कि यार मैंने बड़ा सस्ते में ले ली, जिस तरह अगर, that's why finally when you have cut a very sweet deal, never do the dance of joy in front of your opponents, because sometimes this gloating will drive the opponent to extract the difference. Maybe in future वो आपको कहेगा अच्छा यार, जिसे कहते हैं ना, हम कभी कभार होता है हम सोचते हैं यार हमने इसको एक दफा बेवकूफ बना लिया या हमने एक दफा इसके साथ कर ली, बट अगले वाले बंदे को या आपको ओपोनेंट को दे कैन रियलाइज कि अच्छा यार इसने मुझसे इस दफा तो मेरी, हमने इसको डील क्रैक कर ली, या मुझे तो ये नुकसान हो गया, सस्ते में होगी। इवन अगर आपने कर भी ली, सस्ते में भी कर लिया, डील हो भी गई, सो इट्स नेवर लाइक अगले वाले को यार मैंने तुमसे, तुम्हारा तो नुकसान हो गया, मेरा तो फायदा हो गया। सो अगेन दैट्स मेन प्रोफेशनली, जब कॉर्पोरेट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, when you are bargaining on anything, be considerable, be considerate, उसमें आप अपने फैक्टर मत छोड़ो कि हो सकता है आज आपने वो डील क्रैक कर ली बट एक किसी और टाइम पे the other party, कहते हैं ना, around the table the other person can also do the same thing with you. So again, don't gloat. This is something, बहुत दफा हम बहुत खुश, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, यार वाओ हमने तो हो गया, अच्छा तुम अगले बंदे के सामने तुमने क्या चीज लूज कर दी। So again, some things are related to your professional settings as well. While negotiating, how you have to go along with that. Fine, that's really great that you have cracked it, you have got that, but still be in that particular, like आप अपने कहते हैं ना अपने आप को वो छोड़ते नहीं हो, एक courtesy में भी रहते हो, ठीक है फाइन, हो सकता है आज आप वो हो गया, next time हो सकता है आप हो जाओ। So this is something that's in the professional setting. So these were few of the 7 pitfalls. Those should be avoided in any negotiation or anything, so that you won't be standing in such a position जहाँ पे आपको ऐसे लगे कि यार नहीं, मुझे वरना मेरी चीज negotiate क्यों नहीं हो पाई। So that's it from the chapter.